welcome back to the channel. In the previous classes, we have seen the processing of mRNA. Step 1, that was the tailing, and step 2 was your capping. So I will be putting the link in the description box. Go and watch those videos and then come and watch this splicing. Okay, so splicing is also involved in the processing of mRNA. Why does splicing is necessary? In eukaryotic RNA, that the pre-RNA, the exons and introns are present. So let's see what are those. So this is your eukaryotic mRNA, that is your pre-mRNA. After capping and tailing is done. Now, in this pre-mRNA, between there are certain sequence of nucleotide present that is of particularly no use, we can say, that are intervening sequences. These are known as introns. So introns are intervening sequences that of no use, and it is not utilized in translation, hence it has to be removed. So splicing is the process of removal of introns, and not only introns are removed but also exons are joined. These are exons, and between two exons is the intron. So splicing is the process for the removal of introns and the joining of exons. Now this take place by a particular processes that is involved in this, but before moving to the process that how does it take place and what happens, we should know that here the process of trans-esterification takes place. So suppose here is your mRNA. So mRNA have certain specific nucleotide residues which guide that from here the intron starts. Okay, so suppose this is your mRNA. Okay, here from here, these are intron portion. So starting of intron have a 2 nucleotide residue of GU, and where the intron ends, it has the AG. So this is the starting of the intron and ending of intron. So intron starts from GU, ends from AG. So these are the 5' site. It is known as a 5' end splice site. This is known as 3' end splice site. In between these splice site is a point where adenine residue is present. It is known as the branching point. So these are the certain portions that are involved for the removal of introns, having 2 nucleotide residue of GU in the starting, that is a 5' site, and there is a 3' site of the intron having AG. From here only the cutting of the intron take place and introns is being removed. Now how it has been removed, let's see the process. The process that's involved is the trans-esterification. Now trans-esterification is a process that takes place 2 times. Okay, what is this trans-esterification? Conversion of one type of carboxylic acid ester into the another type of carboxylic ester. Let's see how does it takes place. So generally suppose this is your exon region. ये एक्सॉन का लास्ट न्यूक्लियोटाइड है जिससे हमारा जी यू लगा है. यहाँ पे ये इंट्रॉन वाला पोर्शन है, दिस इज ए जी, एंड हियर इज योर अनदर एक्सॉन स्टार्ट. सो ये वाला पोर्शन हमारा इंट्रॉन का है. नाउ व्हाट हैपेंड कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो आरएनए का केस है तो 2' OH पे एडेनोसिन
इज अ न्यूक्लियोसाइड। इसको हम यहाँ पे कहेंगे एडेनोसिन अटैक करता है। एडेनोसिन का सेकेंड प्राइम एज का जो OH है वो अटैक करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है। ठीक है, दिस इज योर एडेनोसिन। एडेनिन है, एडेनोसिन इज अ राइबोन्यूक्लियोसाइड है। राइबोन्यूक्लियोसाइड जनरली अगर स्ट्रक्चर पता हो कि कैसे बनता है तो एक बार वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे सपोज दिस इज योर राइबोस शुगर, फ्रॉम दिस राइबोस शुगर इज योर CH and here the phosphate of 5 prime end is attached. सपोज यहाँ पे कोई भी एक लगा हुआ है, सपोज हियर इट इज योर एडेनिन। ठीक है, और सेकेंड वाला जो रहता है वो यहाँ पे इसका फॉस्फेट रहता है, फिर से CH, यहाँ सपोज कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा है, या हम सपोज कर सकते हैं यहाँ से ये वाला न्यूक्लियो है। तो इतना पोर्शन जो है ये हमारा एक्सॉन का पार्ट है, यहाँ से हमारा इंट्रॉन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे G वाला है, इसके बाद ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट लगा रहेगा, उससे U लगा रहेगा, ऐसे ये ब्रांचिंग, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जुड़ते जाते हैं और यहाँ पे आता है हमारा एडेनोसिन वाला पोर्शन जिसमें एडेनिन लगा है। This is the second, so this is your एडेनोसिन वाला पोर्शन है। सो एडेनोसिन वाला पोर्शन यानी कि ये मैंने बताया, इसके आगे ये Ag वाला भी रहेगा और ये फिर सेकेंड एक्सॉन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका जो सेकेंड प्राइम OH पे, ये इसकी नंबरिंग करते हैं, तो इस सेकेंड पे जो OH है, OH में क्या है, O इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दिस परफॉर्म्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये किससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहता है। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये तोड़ देता है, जनरली इट ब्रेक्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो ऐसे निकल जाता है, मतलब ये एक्सॉन वाला पोर्शन अलग हो गया। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इधर और एक्सॉन्स भी हैं, तो ये एक्सॉन वाला पोर्शन हमारा अलग हो गया। और यहाँ पे इसका जो होता क्या है, फॉस्फेट का O और इसका OH, H2O रिमूव होके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे अब इसके पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, तो अब ये OH आ गया, ये एक्सॉन वाला पोर्शन है, एक्सॉन की एंडिंग वाला। ठीक है, और इसमें ये एडेनिन लगा है, ये एक्सॉन वाला पोर्शन अलग हो गया और यहाँ पे ये ऐसे राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये चेन ऐसे बेंड हो जाएगी वहां से। सो ये बेंडिंग जो होती है, ठीक है, ये बेंडिंग होने के बाद ये एक्सॉन टूट गया। अब जो इसका OH है, अब इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अटैक कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये अटैक करेगा जो Ag के बगल वाला है इस पे। ठीक है, जनरली ये अटैक करेगा और ये जाएगा Ag और अदर न्यू एक्सॉन के बीच में। यहां से नेक्स्ट एक्सॉन 2 स्टार्ट था, तो ये Ag और एक्सॉन का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये जाएगा और ये इधर से तोड़ देगा। ठीक है, इट विल ब्रेक दी स्ट्रक्चर। सो ये ब्रेक होने की वजह से ये पूरा का पूरा इंट्रॉन का पोर्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब ये इंट्रॉन का पोर्शन अलग हो जाएगा तो इंट्रॉन फ्री, एक्सॉन फ्री हो जाएंगे इंट्रॉन। तो अब ये अलग हो, तो एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। सो यहाँ पे 2 बार ट्रांसएस्टरिफिकेशन हुआ। सबसे पहला ट्रांसएस्टरिफिकेशन जो हुआ वो ये हुआ कि जब एडेनोसिन का 2 प्राइम OH वाले ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ा, तो ये फर्स्ट टाइम ट्रांसएस्टरिफिकेशन हुआ।
सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन तब हुआ जब एक्सॉन का जो OH का O लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाके Ag के जस्ट बगल वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है। तो 2 बार ट्रांस एस्टरिफिकेशन हुआ और ये जो एडेनोसिन वाला था ये इसने एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना लिया जिसे कहते हैं लैरेट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें ये लूप बना लिया। तो एक्चुअल में ये ऐसे दिखता है कुछ, अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये N था, इसके N के OH लोन पेयर बॉन्ड ने क्या किया, इसके लोन, ये एक्सॉन का है, इसके O ने जाके किस पे अटैक किया, जो दूसरा Ag के बगल वाला न्यूक्लियोटाइड था इस पे अटैक कर दिया। और ये Ag वाला कैसा था, ये कुछ इस तरीके का हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो एडेनोसिन था, इसके एडेनोसिन ने इस पे अटैक किया था, तो ये G वाला और इसके बगल में ये U वाला पोर्शन था, तो इसने ऐसा लूप स्ट्रक्चर बना लिया। फिर ये लूप क्या हो गया, अब यहां से भी इसका बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या था, ये लैरिएट बना था। ये लैरिएट अलग हो जाएगा और लास्ट में क्या बन जाएगा, एक्सॉन का न्यूक्लियोटाइड प्लस सेकेंड, तो ये एक्सॉन 1 का न्यूक्लियोटाइड लास्ट वाला और एक्सॉन 2 का न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है। जुड़ता किससे, इसका 2 प्राइम OH, इसका 2 प्राइम एंड इसका 5, तो ये जुड़ता है 5 प्राइम 2 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर से। सो जनरली इसमें 3 प्रोसेस हुआ, 2 बार ट्रांस एस्टरिफिकेशन हुआ और लास्ट में ये 5 प्राइम 2 प्राइम एंड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से दोनों एक्सॉन जुड़ गए। सो दैट इज this is the process for trans esterification, and how does the intron is being removed and the exon is being added. Now there are certain splicing apparatus that are involved. ठीक है, generally ये splicing apparatus क्या होता है? Okay, so now we have to see the splicing apparatus that are involved. Actually the ATP is being required by for the assembly of splicing apparatus on the transcript. We know what is a transcript. So how does and what are the splicing apparatus that are involved? Let's see. So when we are talking about the splicing apparatus, so splicing apparatus are nothing but it is snRNA plus protein, small nuclear RNA plus protein that forms SNRP. SNRP, that is your small nuclear ribonucleotide protein, which is also known as SNRPs. So what are those? Those are U1, U2, U4, U5 and U6. Now generally we are having what? Suppose this is the different types of complexes are formed when these SNRPs are being added. So what are those complexes? Let's see. So first, what happened that this is your exon, this is your intron region, and again this is your exon. Here is your GU region, here is the AG site. So what happened that U1 comes and it binds to the 5 splice site. Here is the branching point. To this branching point, the BBP comes and bind. This is branch binding protein. So this comes and bind. And here there is a पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक्ट। एक्चुअल में ये पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक्ट जो होता है वो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट के थोड़ा सा पहले होता है, वहां पे आके एक अलग फैक्टर बाइंड करता है जिसे कहते हैं U2AF। ठीक है, सो जब ये 3 चीज आके हमारे इंट्रॉन रीजन के डिफरेंट रीजन पे बाइंड करता है, 5 स्प्लाइस साइट पे U1 बाइंड करेगा, ए ब्रांचिंग पॉइंट पे ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगा और पॉलीपिरिमिडीन ट्रैक पे
U2AF फैक्टर बाइंड करेगा। सो इसको कहेंगे ई कॉम्प्लेक्स। हमारा अब जो बना वो ई कॉम्प्लेक्स। लास्ट में हमें स्प्लाइसोसोम बनाता है, वही स्प्लाइसियोसोम जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, दैट इज जो इंट्रॉन को हटा देगा और एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे। सो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ ई कॉम्प्लेक्स। वो कैसे बनता है, U1 आके बाइंड करता है, BBP बाइंड आके करता है और U2AF फैक्टर आके बाइंड करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये BBP रिमूव हो जाएगा। ठीक, दिस BBP इज बीइंग रिमूव्ड एंड U2 comes in bind. It comes in bind to this A branch site. So this is again your GU, U1, A branch site, AG. Here the U2 comes. Now what happened कि ये क्या करेगा, ये U1 इस साइड इसको मूव करवाएगा और U2 इसको इस साइड मूव करवाएगा। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच की जो क्लोजनेस है वो बढ़ेगी और ये वाला रीजन है जो GU और A ब्रांच पॉइंट के बीच वाला पोर्शन है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह का लूप बनाएगा। ठीक है, तो जनरली ये होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स बना ये A कॉम्प्लेक्स है जिसे कहते हैं प्री स्प्लाइसियो zone. This is your A complex that forms the pre-spliceosome. लास्ट में हमें मेन स्प्लाइसियोसोम बनाना है। इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा U2A फैक्टर भी रिमूव हो जाएगा। U2A फैक्टर रिमूव होगा और जो लास्ट के तीनों बचे हुए स्नर्व्स हैं दैट इज योर U4, U5 एंड U6, ये तीनों आके अटैच हो जाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर पे। सो लेट्स सी, ये कुछ इस तरीके का बना लेता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट था, U1 प्रेजेंट था, यहाँ पे U2 प्रेजेंट था, यहाँ पे U6, here is your U5 and U4, ये सब के सब आके लग जाते हैं और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो B1 कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब B1 कॉम्प्लेक्स के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, इसमें से एक स्नर्व निकलेगा, वो एक स्नर्व जो निकलता है वो है U1। जब U1 निकलता है तो यहाँ पे U6 जो है 5 स्प्लाइस साइट के क्लोज आता है। ठीक है, तो जनरली नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये हमारा 5 स्प्लाइस साइट वाला स्ट्रक्चर है, ये AG, ये हमारा यहाँ पे क्या अटैच हो गया, U6 आ गया, इधर U1 आ गया। तो हमारा रिमूव क्या हुआ, U1, सॉरी ये U2 है, U1 रिमूव हो गया। तो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में ये निकल जाएगा। फोर्थ में जो हमारे पास बचेगा वो ये है जिसे B2 कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब B2 कॉम्प्लेक्स में क्या क्या बचा हमारे पास, U6, U2, U4 एंड U5 बचा, सिर्फ 4 बचे। अब फिर से क्या होगा, अब फिर से ये इसमें से एक और रिमूव हो जाएगा, दैट विल बी योर U4। ओके, तो पहले U2A निकलता है, फिर U1 निकलता है, फिर U4 निकलता है और लास्ट में जो बचते हैं जो स्प्लाइसियोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एक्सॉन और ये वाले पोर्शन के, जो कि इसका U6 बचेगा, U2 बचेगा और U5 बचेगा। तो दिस विल फॉर्म्स द फाइनल स्प्लाइसियोसोम जिसे जो हम लोग C कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दिस इज C कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जब ये बन जाएगा तो ये इसका रिमूवल हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड। अब इसका रिमूवल कैसे होगा कि ये यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट A वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे A था, ये यहाँ से ये A वाला स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ से ये कट हो गया। ठीक है, GU वाले रीजन से कट हो गया, ट्रांस एस्ट्रोफिकेशन हुआ था तो ये कट हो गया और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना था GU वाला लैरिएट स्ट्रक्चर, वो
अलग हो जाएगा वो, और साथ में ये पूरा स्ट्रक्चर स्नर्व्स वाला, तो उससे क्या हो गया, ये पूरा इंट्रॉन का रीजन हट गया। सो होपफुली ये समझ में आया कि क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि U1 BBP और U2 AF आके अपने अपने पर्टिकुलर साइड से जुड़ गया। सेकेंड स्टेप में BBP का रिमूव हुआ और U2 आके बाइंड हुआ A ब्रांच पॉइंट से। U1 और U2 ने क्लोज कर दिया, इन दो जो दूर पे थे उनको क्लोज कर दिया और एक ही लूप वाला स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद U1 फिर U4 U5 U6 आते हैं और ये ऐसे अटैच हो जाते हैं, B1 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे U1 गया U6 आके लगता है, तभी कैटालिटिक एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये कट हो जाता है और ये जो पोर्शन है, ये इधर वाला जो था, ये पूरा हैंगिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन ये हैंगिंग ना बना के इधर से बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसका जो G का OH था उसने अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल के A ने अटैक किया था, तो वो क्या लैरेट स्ट्रक्चर बना लेता है। क्योंकि ये जो A का 2' OH, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि A का 2' OH वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है G वाले पे, जिसकी वजह से ये लैरेट स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब ये लैरेट स्ट्रक्चर बनता है फिर यहाँ पे भी ये कट आता है, ठीक है, ये लैरेट स्ट्रक्चर आता है, ये पूरा इंट्रॉन का हिस्सा इस स्नर्व्स के साथ रिमूव हो जाता है। जो दो एक्सॉन वाले होते हैं वो फाइनली जुड़ जाते हैं, तो इस तरीके से स्प्लाइसिंग होती है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट हाउ डज द स्प्लाइसिंग टेक प्लेस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।